أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله له الكمال أحمده سبحانه وأشكره ذي العزة والجلال لا إله إلا الله الكبير المتعال۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے لیے کمال ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ وہ عزت اور جلال والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ بڑا اور برتر ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فيها معاشی واصلح لی آخرتی التي فيها معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر۔ اے اللہ تو میرے دین کو سنوار دے جو میرا معاملے کا محافظ ہے، میری دنیا سنوار دے جس میں میری معیشت ہے، میری آخرت سنوار دے جہاں میں نے لوٹنا ہے، میری زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا سبب اور موت کو ہر برائی سے راحت کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ آج کا سیکشن پارٹ 3 ہم لوگ شروع کریں گے، اور آج دیکھیں گے جو دنیا کی زندگی میں ہر چیز ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ ہم نے دنیا میں بہت ساری عیش اور آرام کی چیزیں دیکھی ہیں، بہت ساری خواہشات ہماری صرف دنیاوی چیزوں کو پانے، حاصل کرنے، استعمال کرنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، یہیں تک ہماری خواہشات جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ لیکن آج کے اس سیکشن سے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا مقصد آخرت کے بعد جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے آخرت کی، اس میں جو ہمیں جنت کو پانے کی جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اس میں وہاں پر کیا کچھ چیزیں ہیں ان پر غور کریں۔ تو جب ایک دنیا کے گھروں میں ایک پردہ جو ہے وہ کرٹن جو ہے پڑا ہوتا ہے، تو آپ کو جہاں پہ آپ ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو وہ کرٹن دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک کرٹن، ایک پردہ جو ہے پڑا ہوتا ہے، اور آپ کو اس طرف اس کے اندر یا اس طرف کا نظارہ، اس طرف کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کس طرح کا ویو ہے، کیا دکھ رہا ہے، کیا کچھ چیزیں ہیں، اور کس طرح سے وہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہوتا ہے وہی ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اسی کی ہمیں خواہش ہوتی ہیں، اور دل بھی ہمارا انہیں چیزوں میں زیادہ لگتا ہے کیونکہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ پردہ ہٹ جائے اور پھر ہم وہاں پر یہ جو ہمارے سامنے ہم نے آنکھ سے دیکھی ہیں اس سے بھی بہترین چیزیں اس پردے کے اس طرف ہوں، تو پھر آپ کا کیا دل کرے گا؟ آپ کی چوائس بدل جائے گی، آپ کی خواہشات بدل جائیں گی۔ اب جو کچھ آپ نے ابھی اپنے آنکھ کے سامنے دیکھا تھا، آپ کو اس سے بھی بہترین چیزیں پردے کے اس طرف دکھائی دے رہی ہیں۔ اب آپ کا دل ان ساری چیزوں سے ہٹ جائے گا، اور جو آپ نے پردہ ہٹا کر کے اس طرف کا نظارہ دیکھا ہے اور جو چیزیں دیکھی ہیں، آپ کو دل کرے گا کہ بس یہ سب مجھے مل جائے، اور جو آپ کے سامنے تھی اس کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی۔ تو اسی طرح سے جو جنت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بہترین وہاں پر تحفے رکھے ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور اچھے بہترین عمل کر کے اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی خاطر کرتے ہیں، تو پھر وہ جنت کی جو خوبیاں ہیں ان کو دیکھ پاتے ہیں، اور
उस पर अमल करके उसको हासिल करने की कोशिश भी करते हैं। तो जब पर्दा हटता है, उधर का सारा नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होता है और आपकी ख्वाहिशात चेंज हो जाती हैं कि अब मुझे यही चाहिए है। उसी तरह से आज का जो सेक्शन है, इसको हम लोग देखेंगे कि अ, जन्नत को हासिल करने के लिए इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए क्या तोहफ़े रखे हैं, क्या खूबियाँ हैं, क्या दर्जे हैं, कौन-सी किस्में हैं, क्या-क्या है वहाँ पर, ताकि दुनिया का जो ये पर्दा हमारी आँखों पर पड़ा हुआ है, इसको अगर हम हटाएँ तो उस तरफ का जो नज़ारा है, यानी जो हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी है, उस पर हम मेहनत करने वाले बनें। और बेहतरीन मोमिन वही है जिसको ये मालूम हो जाए कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो कुछ वक़्त की है, और और आखिरत की ज़िंदगी जो है वो हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी है। और अगर किसी को अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए हैं, किसी को अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए है, तो फिर वो क्या है? वो जन्नत है। क्योंकि दुनिया में पूरी ज़िंदगी दुनिया में सुकून होना और खुशियाँ होना, एक भी गम ना होना, तो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत को बनाया है। तो फिर ये दुनिया जो है वो कैसे हो सकती है? तो अगर हम चाहें कि ये दुनिया जो मैं हम जहाँ हैं ये मेरे मुताबिक हो जाए, जैसा मैं चाहती हूँ वैसी मेरी लाइफ हो जाए, जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए, जो मैं खाना चाहती हूँ, जो पहनना, जो भी अपनी लाइफ में चाहती हूँ वो सब कुछ हो जाए, तो फिर वो ये दुनिया उस चीज़ के लिए नहीं है कि जो आप चाहें वो हो जाए। लेकिन अगर हमारे लिए खैर होता है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए कबूल भी करते हैं। लेकिन जो चाहे वो हो जाए तो उसके लिए क्या है? उसके लिए जन्नत है। जो चाहे जब चाहे वहाँ पर आपको मिलेगा। तो फिर हमारी जो ख़्वाहिश है वो क्या होनी चाहिए? जन्नत को हासिल करना होनी चाहिए। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम एक इंसान होने के नाते जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अ, सभी सलाहियतें दे दी हैं कि लो अब इन सलाहियतों का तुम कैसे इस्तेमाल करते हो और इस ज़िंदगी को इन सलाहियतों के ऊपर रख के तुम कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हो, ये है तुम्हारी आज़माइश। यानी हर एक को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जज़्बात दिए, हर एक को सब्र करना और किस तरह बोलना और कब बोलना और कितना बोलना और क्या करना, कैसे लाइफ़ को खुशी से गुज़ारना है, कैसे ज़िंदगी को जो है खुशहाल बनाना है, ये सारी सलाहियतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दे दी हैं। बस आपको उसका सही इस्तेमाल करना है, उसको अच्छे से जो है वो यूज़ करना है। तो फिर इसमें जो हमारी ख़्वाहिश होनी चाहिए वो क्या है? जन्नत को हासिल करना होनी चाहिए। और जन्नत की खूबी क्या है? यानी जब आप जन्नत का एम रखेंगे तो वहाँ के बारे में जब आपको मालूम हो तो आपका जाने का जो एक्साइटमेंट है, आपकी जो उस तक पहुँचने की खुशी है, उस तक पहुँचने की जो लगन है वो क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी, है ना? जब आप कहीं जाने का कोई प्लान करते हैं और फिर गूगल पर सर्च करते हैं वहाँ पे क्या-क्या है, किस तरह से क्या सर्विस है, किस तरह से वहाँ पर हम जाएँगे, क्या-क्या चीज़ें हैं, तो फिर आपका एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर भी आज के सेक्शन में उस एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जन्नत को हासिल करना सिर्फ़ 1-2 दिन या फिर इस सेक्शन तक नहीं, हम जब तक इस दुनिया में ज़िंदा हैं, हमारा ये हासिल करना जन्नत को होना चाहिए। यानी तौबतें कोई भी हों, लोग कोई भी हों हमारे साथ, हमारा फ़ोकस कहाँ होना चाहिए? हमेशा जन्नत पर होना चाहिए। तो फिर अब उसके लिए हमें उसकी खूबियों को, उसके अंदर जो है चीज़ें, नेमतों को जो है देखना होगा ताकि हमारा शौक और बढ़े। तो फिर 2 ही रास्ते हैं आखिरत में, और वो कौन-से हैं? एक है अस्हाबुन नार और एक है अस्हाबुल जन्नह। तो इंसान को उसके अमल के बदले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये 2 रास्ते दिए। इन 2 रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। अब ये एक मोमिन के हाथ में है जो कामयाबी को हासिल करने के लिए कहाँ निकल रहे हैं, और ये हमारे हाथ में है कि हम अपने लिए कौन-सा रास्ता चुनते हैं। कौन-सा रास्ते की तैयारी करते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो फिर जन्नत की खूबियों में अगर आप देखें तो क्या है? जन्नत सबसे बेहतरीन ठिकाना है। जन्नत क्या है? सबसे बेहतरीन ठिकाना है, और जन्नत ऐश, खूबसूरती और खुशी का घर है। वहाँ कोई गम नहीं होगा। दुनिया में कितने सारे गम देखते हैं, लेकिन जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो खुशी का घर है, जहाँ पर
कोई गम नहीं होगा। और वहाँ जन्नत की खूबियों में से फरिश्ते भी जन्नत के हुस्न से मरगूब होते हैं। और जन्नत का एक चक्कर कहा जाता है कि दुनिया के तमाम गम भुला देगा। सोचें, दुनिया के तमाम गम भुला देगा। दुनिया में न जाने किसके किसके कितने गम अब तक के देखें, लेकिन जन्नत का एक चक्कर बता रहे हैं, एक खाली आप एक चक्कर लगा लें तो फिर क्या होगा, दुनिया के गम भुला। सोचें, वो इमेजिन करके देखें कि वो क्या कैफियत होगी जहाँ पर एक चक्कर लगाने से हम सारे गम भूल जाएंगे। जो दुनिया में हम अपने गमों को लेके परेशान होते हैं, उदास होते हैं, परेशान होते हैं, हमारे चेहरे उतरे हुए हो जाते हैं जब हमें कोई गम हो जाता है, जब जब कोई परेशानी हो जाती है, जब कोई ऐसी खबर मिल जाती है, तो फिर या फिर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाता है जो हम नहीं चाहते होते हैं, तो हम ज़दा हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त को याद कर लें, ये दुनिया जो है, ये जब तक कि मैं इस दुनिया में हूँ, ये तब तक कि मेरे लिए गम मेरे साथ है। मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद लोग तो अपनी जिंदगी जिएंगे, उनको जैसे जीना है, लेकिन मेरे गमों का क्या होगा? मेरे गम तो यहीं रह जाएंगे, इस दुनिया में ही रह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं, सब खत्म हो जाने वाले हैं मेरे साथ साथ। जहाँ ये मेरी धड़कनें बंद हुई, जहाँ ये सांसें रुकी, वहाँ ये सारे मसले, सारे गम, सारी परेशानियां, सारी चाहतें, सारी जितनी भी तकलीफें हैं, ये जितने भी बर्दाश्त हैं, सारी के सारे मेरे साथ उस आखिरी सांस पर रुक जाएंगे। और फिर जन्नत की खूबियों में से बताया जा रहा है कि जन्नत का एक चक्कर तो लगा लें तो क्या होगा। जो जिन गमों को लेकर के दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार दी, अपनी उम्र लगा दी, अपनी जान लगा दी और अपनी सेहत तक के बर्बाद कर ली उन गमों के पीछे रो रो के और अल्लाह से नाउमीदी करके, लेकिन एक चक्कर, वो सारे गम, क्या रोए थे, क्या दुख था, क्या तकलीफ थी, क्या परेशानी थी, कुछ याद नहीं। तो सोचें वहां कितनी बेहतरीन नेमतें होंगी कि एक चक्कर से हम सारे गम ही भूल जाएंगे। और फिर जन्नतुल फिरदौस जो है वो जन्नत का सबसे बुलंद हिस्सा है। जन्नतुल फिरदौस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगा करें। और फिर इससे 4 नहरें फूटती हैं और उसके ऊपर अर्श इलाही है। और जन्नत के दरख्त कैसे हैं? जन्नत के दरख्त यानी इतने घने हैं वहाँ और सायादार हैं। और फल फल तो ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। और इस कदर घने और सायादार वहाँ के दरख्त हैं कि एक सवार 100 साल भी चले मगर साया खत्म नहीं होगा। थोड़ा सा इमेजिन करें इस चीज की तरफ कि एक सवार उसके ऊपर चलता रहे। ये आप लोग ने प्रीवियस क्लास में देखा था। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, क्या कह रहे हैं? इन पैराडाइज, जन्नत में देयर इज अ ट्री, एक पेड़ है, अंडर द शैडो ऑफ विच अ राइडर, उसके नीचे एक राइडर ट्रेवल करे तो 100 ईयर्स तक उसमें क्या करेगा, 100 साल चले मगर साया खत्म नहीं होगा। साया जो होता है एक दरख्त का, आपने देखा होगा कितना वो कवर करता है उस शैडो को। जो शैडो होती है वो साया जो है, उसको कह रहे हैं 100 साल चले, राइडर चले। राइडर तो कितना स्पीड में होता है। सोचिए जरा, जन्नत के दरख्त कितने बड़े होंगे, क्या उनका घना, वो इतने घने होंगे और इतने सायादार कि इतना जो है, राइडर कहा गया, एक शख्स को भी नहीं कहा गया कि वो चले। तो जरा सा दुनिया से हट के, उन पर्दों को हटा के इन चीजों पर गौर करें कि दुनिया में कितने सारे पेड़ पौधे दरख्त आपने अपने घर में, अपनी बालकनी में, अपनी टेरिस पर देखे होंगे, लेकिन जन्नत का दरख्त इतना घना, इतना सायादार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या तख्लीक है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या जन्नत हमारे लिए बनाई है। और उसकी, और इस कदर घने, देखें जरा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने जो है वो अ, हर चीज को बेहतरीन तरीके से बनाने वाले हैं। और फिर जन्नत की मशरूबात कई किस्म के, जिसका दिल चाहेगा वो
मशरूब खुद चलकर पहुंच जाएंगे उसके पास और मशरूब जन्नत के खादिम पेश करेंगे और आला तरीन दर्जे के लोगों को शराब तहूरा पिलाया जाएगा। क्या कुछ उन लोगों के लिए नेमतें हैं। और एक चीज अभी आपने यहाँ पे देखी कि जन्नतुल फिरदौस जो है वो जन्नत का सबसे बुलंद हिस्सा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा जन्नतुल फिरदौस मांगा करें और उससे 4 नहरें फूटती हैं और उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर अर्श इलाही है। तो फिर हमें तो अल्लाह से दुनिया की नेमतों से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। जो है जितना है उसको उस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को। और अपनी नज़र कहाँ रखनी चाहिए, अपनी नज़र इन चीज़ों पर रखनी चाहिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब के लिए बनाई हैं। और किन लोगों के लिए, जो बेहतरीन अमल करेंगे। बेहतरीन अमल कौन से अमल करेंगे, इखलास वाले अमल करेंगे खालिस अल्लाह की खातिर। अब ज़रा सा गौर करें कि वो जन्नत जो है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कही कि वो इतनी नेमतों से भरी हुई है कि जो ना किसी जन्नत जो है वो इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है कि जो किसी आँख ने ना देखी, ना किसी ने सुनी, ना किसी के दिल पर कोई उसका ख़्याल भी गुज़रा। यानी इतनी बेहतरीन वो जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है कि ना उसको किसी ने सुना, ना किसी के दिल पर कोई ख़्याल आया, ना किसी आँख ने उसको देखा। और जन्नत का एक चक्कर अभी बताया कि जन्नत का एक चक्कर दुनिया के सारे गम भुला देगा। तो सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में सबसे ज़्यादा आज़माइश ज़दा शख्स जो जन्नती होगा, उसको लाया जाएगा। यानी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आज़माइश ज़दा शख्स होगा, जो जन्नती होगा, उसको लाया जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा, उसको जन्नत का चक्कर लगाओ। अब देखिए, जो लोग दुनिया में आज़माइशों से घिरे हुए हैं, उनके लिए ये हदीस कितनी बेहतरीन बताई जा रही है। ज़रा अपनी तकलीफ़ों को, अपनी आज़माइशों को अब इस वक़्त क्या करें, इस हदीस से मिलाएँ और देखें कि ज़रा मेरी आज़माइशें बड़ी हैं या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वो नेमतें बड़ी हैं। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा आज़माइश ज़दा शख्स, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं, सबके साथ कोई ना कोई आज़माइश, कोई ना कोई मसले, कोई ना कोई रुकावटें हैं जो दुनिया में चल रही हैं। लेकिन क्या कहा, जो जन्नती होगा उसको लाया जाएगा, यानी अल्लाह ताला फरमाएँगे उसको जन्नत का चक्कर लगवाओ। तो फरिश्ते उसे जन्नत का चक्कर लगवाएँगे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे पूछेगा, आदम के बेटे, क्या तूने दुनिया में कोई तंग हाली या पसंदीदा या फिर नापसंदीदा चीज़ देखी है? क्या पूछेंगे कि तूने दुनिया में कोई तंगहाली या नापसंदीदा चीज़ देखी है? यानी ये सवाल किस शख्स से किया जा रहा है जो दुनिया की आज़माइशों में घिरा हुआ था, जिसकी दुनिया आज़माइशों से गुज़र रही थी। उसने अपनी दुनिया की ज़िंदगी बहुत सारी आज़माइशों के साथ गुज़ारी। उससे सवाल कर रहे हैं कि क्या तुमने दुनिया में कोई तंगहाली या फिर कोई नापसंदीदा चीज़ देखी है? तो वो क्या कहेगा? तो वो कहेगा, तेरी इज्जत की कसम, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जो मुझे नापसंद हो। सोचें ज़रा कि एक जन्नत का चक्कर, हमारी वो सारी दुनिया की जो आज़माइशें जिसके लिए आज हम इतना परेशान होते हैं कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है और ये दुनिया आज़माइश की जगह है, हम इसको ही भूल जाते हैं। अब इंशाल्लाह उस जन्नत के एक चक्कर को याद रखेंगे कि जब मैं वहां पर पहुंच करके अपनी कोई आजमाइश नहीं याद रखूंगी और एक चक्कर मुझे सारी आजमाइशें भुला देगा, सारी नापसंदीदा वो मेरी जिंदगी की चीजें, वो मसले, वो सारे जितने भी तंग मेरे जिंदगी के वक्त गुजरे हैं, उन सबको भुला देगा। तो फिर मुझे इस दुनिया में रहते हुए उन सबको याद रखने और उसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो जन्नत की तैयारी करनी है और उसको जो है पाने की कोशिश करनी है। और फिर
सबसे आला और खूबसूरत जन्नत आपने सुना भी जन्नतुल फिरदौस है, जो अर्श के साए तले है। तो उबादा बिन स्वामित रदियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जे के दरमियान उतना ही फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। क्या फरमाया? जन्नत में 100 दर्जे हैं, 100, और हर 2 दर्जों के दरमियान उतना ही फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान, यानी आसमान और जमीन के बीच में जितना अ, फासला है, डिस्टेंस है। तो दर्जे के एतबार से फिरदौस आला जन्नत है, उसी से जन्नत की चारों नहरें बहती हैं और उसके ऊपर अर्श है। तो लिहाजा जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो क्या मांगो? जन्नतुल फिरदौस मांगो। तो जन्नतुल फिरदौस याद करें हमने कब मांगी? हम मांगते हैं, अगर मांगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जन्नतुल फिरदौस को जो है मांगना है, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 198 में फरमाया है कि लेकिन वो लोग जो अपने रब से डर गए उनके लिए बागात हैं। जो अपने रब से डर गए कि मुझे एक दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा होना है और जो कुछ मैं अपनी ज़िंदगी में कर रही हूँ, इसका भी हिसाब मुझे अल्लाह को देना है, अपने रब को देना है, तो फिर मैं किस तरह दूँगी? और फिर दुनिया में रहते हुए अपने रब से डर गया, यानी अल्लाह को नाराज़ करने से डरता रहा कि मुझे अल्लाह को नाराज़ नहीं करना है, मुझे अपनी ख्वाहिशों को नहीं, बल्कि पहले तो मुझे अल्लाह को राज़ी रखना है। तो उनके लिए बागात हैं और जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा उनमें रहने वाले हैं और अल्लाह के पास से मेहमानी के तौर पर, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बेहतर है। कितनी बेहतरीन हमें बताने के लिए है कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नेक बंदों से इतना राज़ी होते हैं, फिर जब उनको रिवॉर्ड देते हैं, उनको बेहतरीन नेमतें जो है वो उनको नसीब होंगी, वो कुछ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बता दी। और फिर अभी आपने देखा था कि शराबुन तहूरा, जो आप लोग ने देखा था कि मशरूब जो है वो पिएँगे, तो उसके लिए इसमें अ, जन्नत की खूबियों में से आपने देखा था कि जन्नत के मशरूबात कई किस्म के हैं और जिसका दिल चाहेगा वो मशरूब खुद चलकर उसके पास आ जाएँगे। तो इसमें जन्नत के सबसे आला दर्जे के बाद जो जन्नतुल फिरदौस है बताया जा रहा है, उसको माँगने के लिए कहा जा रहा है। और फिर जो भी एक कुरान में फरमाया है, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। तो आयत के इस टुकड़े में जन्नतियों के लिए बशारतें हैं। एक ये कि उन्हें उनका रब खुद शराबे तहूर पिलाएगा और उससे बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई और क्या हो सकती है? और फिर दूसरी ये कि वो मशरूब दुनिया के तमाम सुरूर आवर मशरूबात की ज़ाहिरी व बातिनी नजासतों से और हर किस्म की खराबियों से पाक होगा। ना उसमें नशा होगा, ना सर दर्द होगा, ना मतली होगी, ना क़ै होगा, ना किसी तरह का कोई ना ज़वाल अक़्ल होगा, ना वो सरासर लज़्ज़त और उसमें सुरूर होगा। और तीसरा ये कि तहूरा के लफ्ज़ से ज़ाहिर हो रहा है कि उसके पीने से अहले जन्नत के दिल क्या हो जाएँगे? तहूर यानी पाक हो जाएँगे। तो उनके दिल क्या हो जाएँगे? पाक हो जाएँगे और उनसे पाक हो जाने का मतलब क्या है कि उनके दिल से हसद, बुग़्ज़ और तमाम जितनी भी उनके दिल में वो चीज़ें हैं, हसद, बुग़्ज़, सब क्या होगा? दूर हो जाएँगे। तो है ना हमारे लिए बेहतरीन कि पर्दे का उस तरफ का नज़ारा हमारे लिए क्या कुछ बताया जा रहा है कि वहाँ के सारे गम भूल जाएगा। और फिर दूसरी जगह कि जन्नत की कोई चीज़ नाख़ून से भी कम मिक़दार में ज़ाहिर हो जाए, तो आसमान और ज़मीन के किनारों को चमका दे। जन्नत की कोई चीज़ नाख़ून से भी मिक़दार में कम मिक़दार में ज़ाहिर हो जाए, यानी नेल्स जो हमारे होते हैं उससे भी कम मिक़दार में अगर ज़ाहिर हो जाए, तो क्या बता रहे हैं कि आसमान और ज़मीन के किनारों को चमका दे। तो सोचिए ज़रा, इतनी सी नाख़ून के बराबर की मिक़दार में अगर ज़ाहिर हो जाए तो चमका दे, तो फिर वो पूरी की पूरी जन्नत जो है वो कितनी
नूर और कितनी जो है वो चमकदार और कितनी नेमतों से जो है भरी हुई होगी। और जन्नत का एक आदमी कहा जाता है कि झांके तो उसके कंगन सूरज की रोशनी को ऐसे ही मिटा दे जैसे सूरज सितारों की रोशनी को। उसकी कंगन सूरज की रोशनी को ऐसे ही मिटा दे। सूरज की रोशनी कितनी तेज होती है, लेकिन उसके कंगन उसकी रोशनी को मिटा दें, जैसे सूरज जो है वो सितारों की रोशनी को मिटा देते हैं और सूरज की रोशनी जो है वो तेज हो जाती है। और फिर जन्नत की दीवारें कैसी हैं? जन्नत की दीवार की एक ईंट चांदी की और एक ईंट सोने की है। सईदना अबू सईद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को पैदा किया। तामीर का अंदाज ये था कि एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की और गारा कस्तूरी का था। और फिर दूसरी जगह जन्नत के फल। जन्नत के फल कैसे हैं? जन्नत के फल कभी खत्म नहीं होने वाले। दुनिया में आपने कितने सारे फल देखे होंगे, लेकिन जन्नत का फल, जन्नत की नहरें और जन्नत की नेमतें बेहतरीन है हम सब के लिए, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई हैं। उन लोगों के लिए तो चाहिए किसी को ये चीजें, चाहिए किसी को नेमतें, ये जन्नत, तो फिर तैयारी कर लो उसकी। जो भी नेक अमल करके लाएगा, जो अल्लाह से डरता होगा, अल्लाह के सामने खड़े होने के हिसाब से अच्छे अमल करता रहा होगा और खालिस अल्लाह की खातिर करता रहा होगा, अपने दिल को, अपने नफ्स को, उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया होगा, हर अमल को सिर्फ अल्लाह के लिए, लोगों के लिए नहीं, और अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया होगा कि जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है यही मेरे लिए बेहतर है, यानी हर चीज पर उसको अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की बनाई हुई हर चीज पर जो है वो गौर करता होगा, शुक्र अदा करता है, तो फिर क्या है, वो अल्लाह को राजी करने में लग गया है। तो हमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जन्नतुल फिरदौस मांगना है। और जन्नत के फल जो है वो क्या है, कभी खत्म नहीं होंगे। जितना, जो जिसको जब जितना चाहे उतना खाने का दिल करे, वो जब चाहे जितना खाए, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो वो क्या होंगे, कभी भी खत्म नहीं होने वाले। और जन्नत की नहरें कैसी हैं? जन्नत की नहरें खुशबूदार पहाड़ों से निकलेंगी, खुशबूदार पहाड़ से निकलेंगी नहरें जन्नत की, और जमीन की सतह पर बह रही होंगी, और नहरों के किनारे मोती और याकूत के होंगे। नहरों के किनारे मोती और याकूत के होंगे। दुनिया के कितने सारे मोती आपने देखे होंगे, व्हाइट पर्ल, जो एक यहाँ पर अभी इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो ये पर्ल आपने देखे हैं। आप सोचें, जन्नत के जो बता रहे हैं कि नहरों से जो बह रही होंगी, उसकी नहरों की के किनारों पर मोती, किनारे जो है मोती और याकूत के होंगे। थोड़ा सा एक इमेजिन करके देखें कि दुनिया के मोती तो मैंने देखे हैं, लेकिन जन्नत के मोती जो नहरों के किनारे जो है मोती हैं और याकूत के होंगे, वो कैसे दिखते होंगे। उनको देखने का शौक जो है वो बढ़ा है कि मुझे वो जन्नत के मोती देखने हैं, जो बता रहे हैं कि नहरों के किनारे कैसे होंगे, मोती और याकूत के होंगे। और मिट्टी खालिस कस्तूरी होगी, बुलंद व बाला घर होंगे, और ऊंची नशिस्तें होंगी, खूबसूरत बिस्तर होंगे। दुनिया के कितने सारे बिस्तर आपने देखे हैं, लेकिन जन्नत के बिस्तर कैसे होंगे, खूबसूरत बिस्तर होंगे। और लिबास कौन से होंगे, दुनिया में तो कितने सारे लिबास पहने हैं, और जब कभी हमारे पास लिबास में कमी हो जाए, या फिर आप अपने ड्रेस पर कभी गौर करें कि ये भी मुझे अल्लाह का दिया हुआ है, तो जरा एक बार अल्लाह से इसके लिए भी दुआ मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे जन्नत के लिबास पहनना नसीब करें। ये सारी दुआओं को हमें अल्लाह से मांगना है। दुनिया की कितनी सारी दुआएं हम मांगते हैं, क्या जन्नत की जो नेमतें हैं उसके लिए भी हम कभी दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि अल्लाह मुझे जन्नत के मोती और वहाँ की नहरें और वहाँ के जन्नत के महल देखना नसीब करिए। यहाँ तक के तो हमें दुनिया के फूल देख करके, जो हम दरख्त लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो हम कितना खुश हो जाते हैं उन फूलों को देख करके। एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं कि हमने जो इतनी केयर करी थी, इतना ख्याल रखा था, तो आज वो हमारे
ہمیں پھول دیکھنا نصیب ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنے دل میں اسی کی دعا مانگ لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے مجھے دنیا کا پھول تو دیکھنا نصیب کیا، یہ تو مجھے دیکھنا نصیب ہوا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو جنت کے پھول دیکھنا ہے۔ یہ ساری دعائیں ہماری ہونی چاہیے۔ تو لباس دنیا کے کتنے سارے ہم نے پہنے، ہم پہنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جب بھی غور کریں اپنے لباس پر، اپنے سامان پر، اپنی نعمتوں پر، تو پھر ہماری دعائیں جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ جنت سے ریلیٹ کرنی چاہیے، آخرت کی فکر میں ہمیں آپ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ریشم کا لباس نصیب کرے جو جنت کی ہے۔ اور پھر پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ پتیلے، ہمیشہ جوان رہنے والے خادم ہیں، وہاں سونے چاندی کے کنگن ہیں، دنیا کی کتنی ساری جولری ہے، اور پھر بھی لگتا ہے کہ اور ہونی چاہیے، یا پھر اور اچھے سے ہونی چاہیے، اور زیادہ ہونی چاہیے۔ تو پھر دنیا کے سونے سامان چاندی کی فکر چھوڑیں، دنیا کے کنگن برتن اور سامان یہ سب کیا ہوں گے؟ دنیا کے جتنے بھی کنگن ہیں، جنت کے کنگن کی دعا جو ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے کنگن جو ہے وہ یہ بتانے کا مقصد ہے کہ چاہے ہم کتنے ہی بینگلس بنا لیں، چاہے ہم کتنی گولڈ جیولری لے لیں، اپنے پاس جمع کرتے جائیں، بناتے جائیں، لیکن یہ سب کیا ہوں گے؟ یہ سب کچھ ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں ہمارے بعد والوں کے لیے، یعنی ہمارے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ تو پھر جتنے بھی چیزیں ہم رکھے ہوئے ہیں ان کو بڑھانے کی فکر رہتی ہے، یا پھر اس سے اور بہترین ہو جائے میرے پاس، یا جو کچھ بھی ہم پہنے ہوتے ہیں ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے کہ بس اتنا ہی ہے، اور ہونا چاہیے، اور بہترین ہونا چاہیے، یا پھر اور خواہشات ہوتی ہیں ان سونا چاندی کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن کیا کبھی جنت کے سونے کی اور چاندی کی اور کنگن کی دعائیں مانگی ہم نے؟ اس پر ہمیں دھیان دینا ہے کہ اپنی دعاؤں کو چینج کرنا ہے، اپنی دعاؤں کو کیسے مانگنا ہے۔ یعنی جب کوئی چیز اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے تو اس مقصد کے کو پانے کے لیے جو وہاں چیزیں ہیں اس کو بھی تو پھر مانگنا چاہیے نا۔ یعنی صرف جنت چاہیے، لیکن جنت کے اندر کیا کچھ ہے جو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو ہم اس کے بھی مانگیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے مجھے دنیا کے الحمدللہ سونے چاندی اور کنگن دکھائے، لیکن مجھے آپ جنت کے سونے، جنت کے چاندی، جنت کے کنگن جو ہے پہننا اس کو نصیب کریے، مجھے دیکھنا نصیب کریے، اس کو پہننا نصیب کرے۔ تو یہ ساری دعائیں جو ہے میں اللہ سے مانگنی ہے۔ تو وہاں جو دنیا کے ایک چیز یہ بھی کہ جو دنیا کی چیزیں گولڈ کی ہیں جو آپ پہنتے ہیں، یہ سب کیا ہوں گی؟ ہمارے جانے کے انتقال ہونے کے بعد ہی، یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی ہر ایک چیز چاہے وہ کسی کی نشانی ہو، چاہے وہ کسی کی اس نے کسی خاص موقع پر وہ لی ہو گولڈ کی جویلری، اور یا پھر کبھی بھی کوئی یادیں اس سے جڑی ہوں، اور یا پھر اس کو وہ بہت زیادہ فیوریٹ ہو، بہت زیادہ پسند ہے نا۔ ہم سب کی کوئی نہ کوئی فیوریٹ ہوتی ہے، کوئی کسی کی رنگ فیوریٹ ہوتی ہے، کوئی کسی کی کوئی بینگلس فیوریٹ ہوتی ہیں، تو یہ ساری فیوریٹ کہاں ہوں گی؟ ساری کی ساری فیوریٹ اتنی پسند جو ہے آپ کو ہے، آپ دنیا میں کسی کو جو ہے وہ پہنے نہیں دیکھ سکتے، آپ ہی پہنتے ہیں، تو پھر یہ ساری اتار لی جائیں گی۔ تو دھیان کہاں دینا ہے؟ جنت کے ان جہاں بتا رہے ہیں کہ وہاں سونے چاندی کے کنگن ہوں گے، اور برتن، اور بہت سی اقسام کے مشروبات ہیں، اور اعلیٰ جنتیوں کے لیے کیا ہے وہاں؟ شراب طہورا، جو بھی آپ نے پڑھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ سہیب بن سان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں؟ وہ جواب دیں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور دوزخ سے نجات نہیں دی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا، تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں ہوگی جو انہیں اپنے رب کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ صحیح مسلم کے روایت۔ تو ہمیں اللہ سے اس دعا کو مانگنا ہے جو آپ نے پریویس کلاس میں دعا
देखी थी पार्ट 2 में। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिका वश्शौक़ इला लिक़ाइका। और भी दुआ है इसके आगे जो आप लोगों ने पार्ट 2 में ऑन स्क्रीन देखी थी, उस दुआ को अल्लाह से मांगे। और साथ में इस दुआ को भी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे अपना दीदार नसीब करें। ये सारी दुआओं को इंशाल्लाह अपनी लिस्ट में लाएंगे, उन्हें ऐड करेंगे अपने साथ और अल्लाह से बेहतरीन तरीके से हमें मांगना है। जब अल्लाह से मांगेंगे तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ज़रूर देंगे। और जब आप ऐसी दुआओं को मांगने लगेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल आप खुद क्या होंगे, डे बाय डे चेंज होते जाएँगे। क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है? दुनिया की ज्वेलरी पर, दुनिया के बैंगल्स पर, दुनिया के फ्रूट्स, क्या चाहिए, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, ये सारी ख्वाहिशात आपकी खत्म हो जाएँगी, कम हो जाएँगी। आप कोई ख्वाहिश नहीं करेंगे, आप सिर्फ़ ख्वाहिश करेंगे कि बस अब जो आज हम लोग ने एक सेक्शन में सुना है, ये ही मुझे चाहिए, इससे बेहतरीन और क्या होगा। दुनिया की वो सारी नेमतें, वो सारी चीज़ें तो इसके आगे बिल्कुल फीकी हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से माँगना है। और फिर एक जगह सूरह क़ाफ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 131 से सूरह क़ाफ की 31 से 35 में अगर आप देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहे हैं कि और जन्नत मुत्तकीन के लिए करीब कर दी जाएगी। मुत्तकीन के लिए तो है कोई जो मुत्तकियों की सिफ़ात अपने अंदर लाए, अपने अंदर मुत्तकीन की सिफ़ात है कि जो हर हाल में अल्लाह से डरने वाले होते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरने वाले होते हैं और अपनी ज़िंदगी को परहेज़गारी के साथ गुज़ारते हैं और जो करना है, जो नहीं करना है, वो अल्लाह के हुक्मों के साथ हमेशा मैच करते हैं। और फिर क्या है, जो कुछ जो है वो और जन्नत मुत्तकीन के लिए करीब कर दी जाएगी, जो कुछ दूर ना होगी, ये है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुजू वाला, खूब हिफाज़त करने वाला हो, जो रहमान से बगैर देखे डर गया और रुजू करने वाला दिल लेकर आया। रुजू करने वाला दिल, क्या है हमारा रुजू करने वाला दिल? हम हर वक़्त अल्लाह की तरफ पलटते हैं, अपने दिल को हमने अल्लाह की तरफ पलटा लिया। चेक करें ज़रा अपना मुहासबा करें, क्या मैंने अपने दिल को इस दुनिया से हटा के अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया है? अगर है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों के लिए क्या कहा है कि जन्नत जो है वो करीब कर दी जाएगी और उसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। यही हमेशा रहने का दिन है, हमेशा हमेशा का है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे इसमें होगा और हमारे पास मज़ीद भी है। जो कुछ वो चाहेंगे होगा। ये हम अक्सर कहाँ कहते हैं? इस दुनिया में, कि जो हम चाहें वो हो जाए। बस मेरी यही ख़्वाहिश है कि जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए। लेकिन इसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत बनाई है। ये दुनिया की लिस्ट में नहीं आता है। इसके लिए तो आपको जन्नत की तैयारी करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो चाहूँ वो हो जाए, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें फरमा रहे हैं सूरह क़ाफ में कि उनके लिए जो कुछ वो चाहेंगे उसमें होगा। जो भी चाहें वो होगा, लेकिन इस दुनिया में नहीं। तो करना क्या होगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदारी, वो गुनाहों को छोड़ना और एक बेहतरीन ज़िंदगी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते हैं कि मेरे बंदे जिएँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं? हमारे पास मज़ीद भी है। तो इन सारी बातों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फरमा रहे हैं। और एक तरफ जब बात आती है औरतों की, तो फिर क्या कहा जाता है कि जन्नत में औरतों की तादाद की बात होती है, तो सही मुस्लिम की रिवायत है 7118 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में रहने वालों में सबसे कम तादाद औरतों की है। तो फिर हमें अपने आप को कहाँ लाना है? हमें अपने आप को इन लिस्ट में नहीं लाना है। यानी अब इस हदीस को सुनने के बाद आपको करके दिखाना होगा कि नहीं, मैं जो है जो एक औरत हूँ, तो मैं इस लिस्ट में नहीं आऊँगी। और अपनी तैयारी इस तरह से करें कि जिन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि सबसे कम तादाद है वहाँ, तो बताने का मकसद क्या है? तैयारी करो, प्रिपरेशन करो और लेकर आओ अच्छे अमाल।
تو پھر اس کو پوری کی پوری کیا جزا دی جائے گی۔ اور پھر جنت میں ایک جیسے جو ہے وہ سب کے اخلاق ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 7328 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ ہی ان میں کوئی باہمی بغض ہوگا، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے۔ جیسے ایک دل ہوتا ہے ویسے ہی سب کے دل ہوں گے ایک جیسے، اور اختلاف اور بغض سے پاک دل ہوگا، نہ ہی کسی میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ ہی کوئی کسی کے لیے بغض ہوگا۔ اور پھر دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی 7330 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا، نہ ہی ان میں کوئی باہمی بغض ہوگا، اور ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے۔ یعنی دنیا میں کتنی سارے دلوں میں بیماریاں ہیں، لیکن وہاں سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے۔ اور پھر دنیا میں جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیند بھی بنائی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی ہی ایک جو ہے قسم ہے نیند۔ نیند جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک موت کی قسم ہے، اس لیے جنت والے جو ہے وہ نہیں سوئیں گے۔ سلسلہ صحیح 1087 میں فرمایا ہے۔ اور پھر چہرے کیسے ہوں گے؟ اہل جنت کے چہرے کیسے ہوں گے؟ اپنے آپ کو اس میں لانا ہے ہمیں، اسی لیے ہم یہ سب آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے کانوں سے یہ سب گزار رہے ہیں کہ ہمارے روشن چہرے، مسکراتے چہرے ہونے کے لیے ہم کو بھی بہترین تیاری کرنی ہوگی۔ اور سورہ عبسہ کی آیت نمبر 38 میں فرماتے ہیں، جس میں جنت کے چہروں کا بتایا گیا ہے کہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یعنی آیت 38 اور 39 کہ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے اور بہت خوش ہوں گے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 107 میں کہ اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ کن باتوں کی بات ہو رہی ہے؟ کون سے چہرے ہیں یہ اہل جنت کے چہرے ہیں، جو روشن ہیں، جو ہنستے ہوئے ہیں، بہت خوش ہیں، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے۔ اور پھر ایک اور جگہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اہل جنت کے چہروں کے بتا رہے ہیں کس طرح سے وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، یعنی کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، اور بلند جنت میں ہوں گے۔ چہرے تر و تازہ، خوش اور سفید، اور چہرے پہ رونق اور ہنستے ہوئے کب ہوتے ہیں؟ جب آپ کچھ حاصل کر لیتے ہیں، ہے نا۔ دنیا میں بچے یا پھر جب ہم چھوٹے تھے تو پھر ہمارا جب ہم کسی کمپٹیشن میں جوائن ہوئے، اور یا پھر ہمارا رپورٹ کارڈ آیا یا ہمارا رزلٹ آیا، تو پھر ہم اس وقت پر ہمارے چہرے کیسے ہوتے ہیں تھے؟ تو اس طرح سے یاد کریں کہ جب آپ کسی کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد اس کو جیت لیتے تھے، اپنی کوشش پر آپ خوش ہو کر کے اس کو جیتنے کے بعد آپ کا چہرہ خوش ہو جاتا تھا، اسی طرح سے آپ اپنی اس کوشش پر جو دنیا میں آپ کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوں گے؟ اس دن چہرے تو تازہ ہو جائیں گے۔ سورہ غاشیہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی کوششوں پر خوش ہو جائیں گے کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اللہ کے حکم سے، اور اس کو پھر وہ کہاں ہوں گے؟ جب تو پھر وہ بلند جنت میں ہوں گے۔ اور دوسری جگہ سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 22-23 میں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ دوسری جگہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنی رب کی طرف دیکھنے والے۔ تو چاہیے ہمیں ہمارے چہرے تر و تازہ، خوشحال اور ہنستے ہوئے، تو پھر اہل جنت کی تیاری کریں، ان کے ہیں یہ چہرے اگر ہمیں چاہیے تو۔ اور پھر اس کے بعد سورہ مطففین میں بھی اگر آپ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 22-23 میں ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ یقیناً بڑی نعمت میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم،
تو ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی پہنچانے کا، ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی جو ہے وہ پہچانے گا۔ تو بے شک نیک لوگ کیا ہوں گے؟ نعمتوں میں ہوں گے، بڑی نعمتوں میں ہوں گے، اور جنت کی نعمتیں بہترین نعمتیں ہیں، اور تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو شوق بڑھ رہا ہے جنت کو پانے کا، اس کی جو ہے اس کو حاصل کرنے کا۔ وہاں کے چہرے کیسے ہوں گے، ان کی تازگی کیسی ہوگی، تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں، ان حدیثوں کو ہم تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا شوق جو ہے وہ اس کو پانے کی چاہ جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اور پھر ایک جگہ صحیح بخاری کی روایت 1897 میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے، اے اللہ کے بندے یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزدار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا، اور جو صدقہ کرنے والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو تھوڑا امیجن کریں ذرا اس پر کہ ان دروازوں سے بلایا جائے گا کن لوگوں کو؟ جو نمازی ہوں گے نماز کے دروازے سے، اور جو روزدار ہوں گے ان کو باب الریان سے بلایا جائے گا، صدقہ کرنے والوں کو صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو کیا ہم کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت بھی مانگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میرے اس صدقے کو قبول کریں اور بہترین طریقے سے مجھے صدقہ کرنے والا بنا۔ تو کیا ہے؟ نماز، جہاد، صدقے کا دروازہ بھی جو ہے بتایا گیا کہ اس سے بلایا جائے گا۔ اور پھر ابھی آپ نے دیکھا باب الریان، جو کس کے لیے ہے؟ جو روزے داروں کے لیے ہے۔ تو پھر صحیح بخاری کی روایت 1896 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے، ان کے سوا کوئی اور اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے علاوہ اس سے اور کوئی اس میں اندر نہیں جا پائے گا، اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور پھر اس میں سے کوئی بھی اندر نہیں جا سکے گا۔ تو روزے دار، اب ہم اپنا سوچیں کہ ہم تو ہر رمضان روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے جو روزے چھوٹے ہوئے ہیں، جو قضا ہو جاتے ہیں ہمارے روزے، اس کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو اس کو بھی رکھ کر کے ہم کیا کریں؟ روزدار کی جو روزے رکھنے والے، جو اپنے روزوں کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی لسٹ میں آئیں، جو ایک بھی حساب جو ہے وہ اپنے لیے نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو ان کے لیے کتنی بہترین ہے کہ اس میں پھر اور کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، اور پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں، پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اندر داخل ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں مسند احمد کی روایت میں 22768 میں فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اس طرح اللہ کی عبادت کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور بات سنے اور مانے، تو جنت کے دروازوں میں سے جس میں سے چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا۔ اور جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری سب سے بہترین، جو ماشاءاللہ ہم اپنے عمل میں بہت آسانی سے لا سکتے ہیں، اور کچھ سسٹرز لائے بھی ہوں گی، کچھ اس کو کرتے بھی ہوں گی، ایک کہ آپ صحیح مسلم کی روایت 576 میں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، ان میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو اگر ہم یہ کرتے تھے تو بہت اچھی بات ہے، اس عمل کو ہم کنٹینیو رکھیں کریں، اور اس کے لیے کیا ہے؟ کامل وضو کرنا کہ ایک جگہ بھی خشک نہ رہے، اور ان کے لیے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس فضیلت کو کو اگر یاد رکھیں گے تو اور شوق بڑھے گا، جب بھول بھی جائیں گے تو یاد رہے گا کہ مجھے تو
इस हदीस को अपनी ज़िंदगी में अब एक भी जो है बार छोड़ना नहीं है और कितना आसान है कि हमें बस वज़ू के बाद इसको पढ़ना है। और फिर दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि मुस्नद अहमद की रिवायत में 1661 में कि अब्दुल्ला बिन औफ रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हो, अब इसको ज़रा-सा अपने ऊपर रख कर के देखें। क्या मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हूँ? और उसके बाद माह रमज़ान के रोज़े रखती हो। क्या बता रहे हैं हदीस में? रमज़ान के रोज़े रखती हो। तो फिर अपना-अपना असेसमेंट करें इस हदीस को लेकर के कि मैं कहाँ पे हूँ और अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करती हो और अपने शौहर की इताअत करती हो। अपने शौहर की इताअत करती हो, उससे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहो दाखिल हो जाओ। यानी अब आप ये जो बात सुन रहे हैं, ये हदीस सुन रहे हैं और पीछे भी जो आपने सुनी है, ये क्या है? उनमें दाखिल होने के लिए। जन्नत में दाखिल होने वालों के लिए है कि अगर किसी को जन्नत में दाखिल होना है और वो चाहता है कि जन्नत के दरवाजे से वो दाखिल हो जाए, तो फिर उसको इन बातों पर, इन हदीसों पर क्या करना होगा? अमल करना होगा। तो ये हदीस जो है इसको अपनी ज़िंदगी में लाएँ कि जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाओ। तो करना क्या है? 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती हो और माह रमज़ान के रोज़े रखती हो, अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त करती हो और अपने शौहर की इताअत करती हो। यानी अपने शौहर की बात मानने वाली हो, उसको खुश रखने वाली हो। और फिर दूसरी हदीस सुनन इब्न माजा की 2089 में फरमाते हैं, अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि बाप जन्नत का दरमियान वाला दरवाज़ा है। बाप जन्नत का दरमियान वाला दरवाज़ा है, तुम्हारी मर्ज़ी है अपने वालिदैन का ख़याल रखो या छोड़ दो। अब देखिए इस हदीस में बताया जा रहा है कि अपने जैसे माँ को जो है इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको इतना जो है वो खिदमत करते हैं, प्यार करते हैं और बाप जो है जो दिन भर बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनके लिए भी क्या करना है, उनकी भी खिदमत करने के लिए उनका भी ख़्याल रखना है और उनको बाप को क्या किया, बाप जो है वो जन्नत का दरमियान वाला दरवाज़ा है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है यानी अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम अपने वालिदैन का ख़्याल रखें या छोड़ दें। और फिर एक और हदीस उसमें फरमाते हैं सुनन निसाई की 1870 में कि मुआविया बिन क़ुरा अपने वालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसके साथ उसका एक बेटा था। आपने उस आदमी से फरमाया, क्या तू इससे मोहब्बत करता है? उसने कहा, अल्लाह आपसे वैसे ही मोहब्बत फरमाए जैसी मैं उससे रखता हूँ, यानी मुझे उससे इंतहा दर्जे की मोहब्बत है। तो हुआ यूं कि वो बच्चा फौत हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कई दिन उस शख्स को नहीं देखा, तो उसके बारे में पूछा। तो आपको बताया गया कि तू अब आपने उसे बुलाया, वो आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाया और वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तू क़यामत के दिन जन्नत के जिस दरवाजे पर भी जाए, वहाँ उसे पाए, वो भागता हुआ तेरे लिए दरवाज़ा खोले। सुनन निसाई की रिवायत। तो कितनी प्यारी कि उन लोगों के लिए कि जिनके बच्चे, जिनकी औलाद इस दुनिया में इंतकाल कर गए, फौत हो गए, उनके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता? यानी अब इस हदीस को सुन के हमें सब्र करना चाहिए, उन लोगों को सबको सब्र करना चाहिए और इसको गौर करना चाहिए कि जन्नत के जिस दरवाजे पर भी जाए, वहाँ उसे पाए और वो भागता हुआ तेरे लिए दरवाज़ा खोले। और फिर दूसरी जगह सुनन इब्न माजा की रिवायत 1604 में बताया कि उतबा बिन अब्द सलमी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के 3 ऐसे बच्चे फौत हो जाएं, जो गुनाह की उम्र को ना पहुँचे हों, वो जन्नत के 8 दरवाज़ों पर उसका इस्तकबाल करेंगे। जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। कहाँ दाखिल हो जाए?
जन्नत में दाखिल हो जाए। तो फिर अब जितने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज़माइशें जो है ली हैं कि उनके बच्चे इस दुनिया में फ़ौत हो चुके हैं, नहीं रहे, उन लोगों को इस हदीस को सुन के सब्र कर लेना चाहिए और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना चाहिए कि मुझे इसका भी बेहतरीन सिला मिलेगा। और फिर कहा जा रहा है कि वो जन्नत के 8 दरवाज़ों पर उसका इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे उसका, कि जिस दरवाज़े से चाहे वो दाखिल हो जाए। तो बेहतरीन हमारे लिए समझने के लिए कि ये दुनिया को जिसको हम इतना ज़्यादा ले लेते हैं सीरियसली, बल्कि हमें तो बता दिया गया है कि ये आज़माइश की जगह है। जो कुछ भी तुम यहाँ पर बर्दाश्त करोगे और अच्छे काम करोगे, नेकी करोगे या सब्र करोगे, हर कुछ, हर एक बारीक, एक छोटी ज़र्रा बराबर भी नेकी जो है वो तुम करोगे तो तुम्हें उसकी बेहतरीन जज़ा मिलने वाली है। कोई भी सब्र, कोई भी बर्दाश्त, कोई भी आज़माइश का गुज़ारा हुआ वक़्त क्या बता रहे हैं हमें इससे पता चलता है, या फिर कोई भी किया हुआ नेक अमल ज़ाया नहीं होने वाला है। हर एक को उसका बेहतरीन अज्र ज़रूर दिया जाएगा। तो इंशाअल्लाह दुनिया की चीज़ों की ख़्वाहिश करना हम जो है वो बंद कर दें और हम जन्नत की जो नेमतें आज हमने सुनी हैं उसको अल्लाह से माँगने वाले बनें। और जन्नत के दरवाज़े जो जब जब खुलते हैं, जैसे अभी आपने देखा दाखिल होने का, अब जन्नत के दरवाज़े जब-जब खुलते हैं, यानी जैसे रमज़ान का महीना है, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, तो फिर हम उसका पूरा-पूरा जो है फ़ायदा लेने वाले बने। और जन्नत के जो है कुछ दर्जात हैं, जैसे सूरह तौहा में अगर आप देखें कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, और जो उसके पास मोमिन बनकर आएगा, उसने अच्छे अमाल किए होंगे तो यही लोग हैं जिनके लिए सबसे बुलंद दर्जे हैं। हमेशगी के बागात हैं, हमेशा-हमेशा के बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहने वाले, और ये उसकी जज़ा है जो पाक हुआ। और फिर एक जगह सूरह अनफ़ाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ईमान वालों के लिए क्या दर्जे हैं। तो मोमिन तो कहा जाता है, असल मोमिन तो वही है। आज हम लोग ने सुना कि प्रीवियस क्लास में मोमिन की कामयाबी को के बाद तो असल मोमिन जो है तो वही है कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो उनका दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उनकी आयत पढ़ी जाए तो उन्हें उनके ईमान बढ़ा देती हैं और वो अपने ही रब पर भरोसा रख करते हैं। और वो लोग जो नमाज़ कायम करते हैं और उसमें से जो हमने उन्हें दिया खर्च करते हैं। नमाज़ कायम करते हैं, ये नहीं कहा गया कि नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ कायम करते हैं, पाकी का ख़्याल रखते हैं, वक़्त का ख़्याल रखते हैं और नमाज़ को छोड़ने से जो है बचाते हैं, नमाज़ों की हिफ़ाज़त करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि वो लोग जो नमाज़ कायम करते हैं और उसमें से जो कुछ हमने उन्हें दिया है, खर्च करते हैं, तो यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब के पास बहुत से दर्जे और बहुत बड़ी बख्शिश और बाइज़्ज़त रिज़्क है। तो फिर दुनिया के मज़े ख़त्म करके आखिरत के मज़े लेने की दुआएँ करना और उसके लिए अच्छे-अच्छे अमल करना, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल देना सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ख़ातिर, और अच्छे अमल करते रहना, और ये सारी जो भी आपने सुनी ये सब करना, तो उन्हें क्या है, उनकी वही जो है कहा जा रहा है कि सच्चे मोमिन हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास उनके लिए बहुत बड़े-बड़े दर्जे हैं। हमें चाहिए हैं बड़े दर्जे, हमें चाहिए है अल्लाह की बख्शिश, और हमें भी चाहिए बाइज़्ज़त रिज़्क। तो फिर इस सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 2 में जो फरमा रहे हैं ईमान वालों के लिए जो दर्जे उनको हासिल करने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बनाए। और फिर एक जगह सूरह अनाम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 132 में वलिकुल्ली दरजातुन मिम्मा अमिलू, और हर एक के लिए मुख्तलिफ दर्जे हैं, अलग-अलग दर्जे हैं उन अमाल की वजह से जो उन्होंने किए। जिसने जैसा अमल किया उसके लिए हर एक के लिए अलग-अलग क्या हैं, दर्जे हैं। और फिर एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं, और इन 2 दर्जों में इतना फ़ासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है। सही बुखारी की रिवायत है।
اور پھر اس کے بعد حافظ قرآن کے لیے درجے، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی آیتوں کو یاد کرنے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی پیاری حدیث، اور یہ آپ نے سنی بھی ہوگی، سنن ابن ماجہ کی 3780 میں، حافظ قرآن کے لیے یعنی جو بھی اللہ کے بندے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی کتاب قرآن کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں اس کو یاد کرنے کی، وقت نکال کے اللہ کی خاطر اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ان درجوں کو پانے کے لیے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن والے یعنی حافظ یا قاری سے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوتے وقت کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا، کہاں چڑھتا جا؟ جنت کے درجات میں چڑھتا جا، اور وہ پڑھتا جائے گا اور ہر آیت کے ساتھ ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہاں پر جتنے بھی اس سیکشن کو سن رہے ہیں ذرا سا غور کریں، ہمیں کتنی آیت یاد ہیں، تو پھر ان کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہر آیت کے ساتھ ایک ایک اسٹیپ، ایک ایک درجے جو ہے وہ بلند ہوتا چلا جائے گا، اور جس کو جتنی بھی یاد ہوگی آیتیں کہ اسے جو آخری آیت یاد ہے وہ بھی پڑھ لے، اور پھر وہ کیا ہوگا، ان درجوں تک پہنچ جائے گا جس کو جتنی آیتیں یاد ہوں گی۔ تو پھر ذرا اس بات پر غور کریں کہ دنیا میں کتنی ساری سورہ آپ لرن کرتے ہیں، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں اس کو یاد کرنے کے لیے، لیکن ان کے لیے بہترین درجے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، اور نہ ہی کبھی کسی کے دل پر کوئی خیال گزرا، ان درجوں کو پانے کے لیے بہترین ہے کہ وہ آیت کے ساتھ ایک ایک درجہ کیا ہوں گے، چڑھتے جائیں گے، چڑھتے جائیں گے، اور پھر ہر درجے سے اوپر ایک درجے کا فاصلہ جو ہے وہ کتنا ہوگا، صحیح بخاری کی روایت 3256 میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ اپنے سے اوپر بالا خانوں والوں کو اپنے سر اٹھا کر انتہائی اشتیاق سے غور جو ہے وہ کرتے ہوئے اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا میں چمکدار گہرے اور بہت دور کے ستاروں کو جو ہے دیکھتے ہیں، گہرے چمکدار اور دور کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر جنت کے یہاں پہ کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ وہ جیسے جنتی لوگ اپنے سے اوپر جب بالا خانہ والوں کو یعنی سر اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ اس طرح دیکھیں گے جیسے وہ دنیا کے کسی چمکدار گہرے اور بہت دور کے ستارے کو یوں نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے میں ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے درجوں کا فرق جو ہے وہ بہت ہوگا۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہ پا سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے ایمان کو مانگنا ہے اور اس دنیا کی خواہشات کو ختم کر کے اپنے لیے جنت کی نعمتوں کو اللہ سے مانگنا ہے، اور جو آج آپ نے اس دنیا کے پردے کو ہٹا کر کے ایک طرف دیکھا اور کہ کیا جو ہے وہ اس طرف کا نظارہ ہے اور کیا کچھ جو ہے اس میں جنت کے دروازے ہیں، اور پھر جنت کے دروازے کب کھلتے ہیں، اور جنت کے درجے جو ہے وہ کیا ہیں، اور جنت کے چہرے، اہل جنت کے چہرے کیسے ہوں گے، اور اہل جنت کی صفات کیا ہے، اور ان کے چہرے کیسے ہوں گے، وہاں کیا نعمتیں ہیں، وہ سب کچھ جو آج آپ نے سنا ہے، اس پر اپنی اس زندگی سے پھر ہمارا دل کیا ہونا چاہیے، ان سب کو سننے کے بعد اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل بدلنے چاہیے اور ہمارے دل میں جو جنت کی خوبیاں ہیں تو اس کا شوق جو ہے وہ ہمارے اندر آنا چاہیے۔ تو جنت جو ہے وہ سب سے بہترین ٹھکانہ ہے اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشگوار زندگی ہے، تو یہ ساری دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس چمکتے ہوئے دنیاوی چیزوں سے جو ہے اپنے دل کو ہٹانا ہوگا اور آخرت کے لیے اپنے لیے تیاری کرنی ہوگی اور اللہ سے جنت کو پانے میں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اس کے لیے کیا کریں گے، ہم اپنے
آزمائشوں پر صبر کرنے والے بنیں گے اور امیجن کریں گے کہ جس طرح ایک دنیا کا دروازہ جو ہے وہ ہماری نظروں پر پڑا ہوا ہے، اس دروازے کو، اس پردے کو ہٹانا ہے اور جنت کے اس طرف کا جو نظارہ ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہمارے لیے اس جنت میں داخل ہونا ہمارے لیے آسان کریں۔ تو مانگیں اللہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین مومن اور ایک متقی پرہیزگار والی زندگی نصیب فرمائیے، تاکہ ہمیں بھی جنت کے درخت کے سائے اور جنت کے پھل اور جنت کی نہریں، جنت کے موتی اور یاقوت اور نہریں اور یہ سب کچھ ہمیں جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہو اور اللہ کا دیدار بھی۔ تو آج کا سیکشن یہیں پر کمپلیٹ ہوتا ہے اور اس کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی دنیا سے جو محبت کرتے ہیں، اپنی اس زندگی سے جو اتنی محبت کرتے ہیں، تو ہماری محبت جو ہے اس زندگی کی ہونی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ ہمارا شوق جو ہے وہ جنت کا ہونا چاہیے اور ہماری فکر جو ہے اس میں داخل ہونے کی، اور وہ ساری چیزیں جو آج آپ نے دیکھی کہ وہاں کیا ہے، وہاں کیا کچھ ہے اور کس طرح سے جب جو چاہے گا وہ ہوگا، تو اس دنیا میں اب ہم یہ اس کانسیپٹ کو کہنا چھوڑ دیں کہ میں تو بس میری ایک یہی خواہش ہے کہ میں جو چاہتی ہوں وہ ہو جائے، اس کو بھول جائیں، کیونکہ یہ اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ جو ہے وہ جنت میں ہو سکتا ہے، تو پھر اس کی تیاری کرو۔ اب کرنا کیا ہے، ہمیں جنت میں جانے کے لیے تیاری کرنی ہے اور اللہ سے پکی سچی توبہ کرنی ہے، اپنی زندگی کو اپنے اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو دنیا کی جتنی بھی آزمائشیں ہیں، آپ دیکھیے اس میں آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جتنے بھی غم ہیں وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت بڑے لگتے ہیں، بہت صبر کرنا مشکل لگتا ہے اور اس کو برداشت کرنا، ان آزمائشوں میں رہنا جو ایک مشکل زندگی سا معلوم ہوتا ہے، لیکن ایک جنت کا چکر آپ کی دنیا کے تمام آزمائشوں کو بھلا دے گا، اس بات کو نہ بھولیں۔ تو کلاس آج کی اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2 اینڈ آج کا سیکشن پارٹ 3 اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں جو کچھ بھی ایک مومن کی کامیابی کو حاصل کرنے کی، دنیا میں بہت ساری کامیابیوں پر ہماری نظر ہوتی ہے، لیکن ہماری کامیابی کی نظر جو ہے وہ مومن پر کیوں نہیں پڑتی ہے؟ کیوں نہیں ہم ان کو دیکھنا چاہیں اور کیوں نہیں ہم جنت کو جو پانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اس کے اندر کو بھی ہمیں جب پتہ چلا ہے آج کی کلاس سے، تو اب ہمارا شوق اور بڑھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا کچھ ہے۔ اور پارٹ 2 میں آپ نے دیکھا جو عمل کرتے ہیں، تو مومن جو عمل کرتے ہیں اس پر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے اور ہماری زندگی کو وہ زندگی بنا دیں، ہمارے دل کو وہ دل بنا دیں اور ہمارے لیے آسانیاں کریں، ہمارے لیے عمل کرنا آسان کریں۔ جو بھی ہم ارادے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اللہ اس میں ہمارا پورا پورا ساتھ دیں، ہماری مدد کریں، ہمارے ہر عمل کو قبول کریں اور اس سے بہترین طریقے سے ہمیں عمل کرنے والا بنائیں، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آج کے سیکشن جو پارٹ 3 ہے، اس میں اس پریویس میں آپ لوگ نے دیکھا کہ کس طرح سے کامیابی کو پہلے ہم لوگ نے دیکھنا چاہا کہ کامیابی کو پانے کے لیے ہم نے مومن کو ایک مومن جو ہوتا ہے اس کو دیکھنا کہ اس کی کامیابی کیا ہے۔ دنیا کی کامیابیوں کو اگر دیکھیں گے تو دنیا میں وہ کامیابیاں ہمارے ساتھ ختم ہو جائیں گی، اس کا آخرت سے کوئی ریلیٹ نہیں ہوگا، اس کا آخرت میں کوئی بھی ہم وہ اچیو نہیں کر پائیں گے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے پارٹ 1 والے سیکشن میں دیکھا کہ کامیابی جو اصل ہوتی ہے وہ ایک مسلمان کی کیا ہونی چاہیے، اور اس پر پھر ہم لوگ نے دیکھا کہ مومن ہوتے کون ہیں، کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، اور پھر پارٹ 2 میں آپ نے دیکھا کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، مومن جو ہے وہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کرتے کیا ہیں۔ تو اس کے لیے آپ پارٹ 2 سیکشن میں انشاءاللہ اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور ہم لوگ نے پھر اس کے بعد پارٹ 3 میں دیکھا
کہ جب हम इस पर अमल करेंगे, जब हम मोमिन की कामयाबी का एम बना लेंगे, पर्पस बना लेंगे, मकसद बना लेंगे अपना, और फिर उस पर हम मकसद को पूरा करने के लिए जब हम अमल करने लगेंगे, तो अमल कर लेने के बाद हमें क्या मिलेगा? है ना? आप सबके पास कोई ना कोई क्वेश्चन होता है कि अगर हम आपकी बात मान लेते हैं तो फिर हमें मिलेगा क्या? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्मों को मानने के बाद, उस कामयाबी को हासिल करने के बाद हमें क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नतों की नेमतें जो बनाई हैं, उसको इस पार्ट 3 के सेक्शन में आपने देखा, ताकि हमारा शौक जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो हमारा शौक जो है वो और भी बढ़ना चाहिए अब इस सेक्शन के बाद से। तो दुनिया की सारी चीज़ें अब आप जब-जब देखेंगे आपको लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। जन्नत की नेमतें तो आज सुन ली हैं, तो वही सब जो है वो अब आपके ज़हन में रहेंगी, और उसी की ख़्वाहिश रहेगी, उसी का ख़्याल रहेगा, बस उसी के जब भी उससे दुनिया की रिलेटेड कोई चीज़ देखेंगे तो पर फ़ौरन से कोई फूल, कोई बैंगल्स, कहीं कोई गोल्ड ज्वेलरी, खुद भी अपने जो भी है सब देखेंगे नेमतें, तो फ़ौरन जन्नत की नेमतें याद आने वाली हैं। तो बेहतरीन है हमारे लिए जन्नत की नेमतें, जिसको हासिल करने के बाद हम खुश हो जाएँगे, हमारे चेहरे तरोताज़ा हो जाएँगे, हँसते हुए, खुश होते हुए, मुस्कुराते हुए। जिस तरह से दुनिया में एक बच्चा जो है वो अपने रिज़ल्ट को फर्स्ट रैंक लेने के बाद खुश हो जाते हैं, उसके उनके चेहरे जो है वो एकदम फ्रेश हो जाते हैं और हँसते हुए होते हैं, उसी तरह से क्या बताया, अहले जन्नत के चेहरे खुश हो जाने वाले हैं। तो ये कोई एक नॉर्मल सी बात नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। हमें इसको अपनी ज़िंदगी में लाना है। उन चेहरों को पाने के लिए, उन जगहों को जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जहाँ जो चाहोगे वो होगा। तो उस ज़िंदगी को पाने के लिए हमको क्या करना है? मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के बाद ही उसका फल मिलता है। बिना मेहनत के सिर्फ़ कहते रहने से कुछ हासिल नहीं होता है, ये तो आपको मालूम है। तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे, और सबसे ब्यूटीफुल दुआ जो आज इस सेक्शन में पढ़ना चाहेंगे और हर नमाज़ में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माँगनी है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, या अल्लाह बिल्ड फॉर मी अ होम विद यू इन पैराडाइज़। इस दुआ को इंशाल्लाह अ, ग्रुप पर सेंड करेंगे, आप लोग उसको वहाँ से याद करने की ली इंदका बैतन फिल जन्नह, कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना दीजिए, एक घर बना। तो चाहिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के से ये दुआ, तो इंशाल्लाह हर नमाज़ में हम इसको पढ़ने वाले बनेंगे और अल्लाह से माँगेंगे कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना दिए। आमीन या रब्बुल आलमीन।